Hello, my lovely students. Welcome back to my channel Smart Maths by Surbi. इस वीडियो में हम चैप्टर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब के पेज वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मेरी प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स एंड फिल द टेबल बिलो। ये हमारा पेज नंबर 4 पे है और आपको एक टेबल भी बनी हुई है। सो हम इस टेबल को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें स्क्वायर्स निकालने हैं। स्क्वायर्स मींस मल्टीप्लाइंग द सेम नंबर ट्वाइस। सो 1 स्क्वायर इज 1, 1 into 1 is 1, 2 into 2 is 4, 3 into 3 is 9, 4 into 4 is 16, 5 into 5 is 25। वैसे ही 6 into 6 is 36, 7 into 7 is 49, 8 8s are 64, 9 9s are 81, 10 10s are 100. Okay, let's start with the next one, that is 11 square. 11 into 11 is 121, 12 into 12 is 144, 13 into 13 is 169, 14 into 14 is 196, 15 into 15 is 225, 16 into 16 is 256, 17 into 17 is 289, 18 into 18 is 324, 19 into 19 is 361, and 20 into 20 is 400. Similarly 21 square आपको 441 दे रखा है, 22 square will be 484 और इसको आपको 30 तक करने हैं। So you can write it as 23 square as 529, 24 square is 576, 25 square is 625, 26 square is 676, 27 square, 28 square, 29 square and 30 square, क्योंकि हमें 30 तक बोल रखे हैं नेचुरल नंबर्स। सो 27 square will be 729, 28 square will be 784, 841 and 30 square will be 900। है ना सिंपल। चलो स्टूडेंट्स, इसी में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ जल्दी से। जैसे कि मेरे को 16 स्क्वायर करना है तो मैं क्या करूंगी, 10 प्लस 6 का होल स्क्वायर। सो इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और मैं इसको सॉल्व कर लूंगी। 10 स्क्वायर इज 100, 6 स्क्वायर इज 36 and 6 2s are 12 and 12 into 10 is 120, and if you add this up you will get it as 256 which is a square of 16 square. So आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हो, आप उसको दो बार मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, बिकॉज दिस इज अ स्क्वायर सो यू हैव टू मल्टीप्लाई ईच नंबर ट्वाइस। सो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो एंड द थर्ड वन इज यू कैन आइदर लर्न इट। सो आपके पास 3 मेथड है, इट्स अप टू यू कि आपको किस मेथड से करना है। Question 2 is, what patterns do you notice? Share your observation and make conclusion. So students, क्या आपने नोटिस करा कि हमने पिछले क्वेश्चन में क्या करा था? Yes, the answer is the sum of consecutive odd number is a perfect square. आपने देखा होगा कि हमने लिखा था 1 square is equals to 1, 2 square is equals to 4, correct? That is 1 plus 3। वैसे ही हमने क्या करा था, 3 स्क्वायर दैट इज 9। अब 9 कैसे बना, 1 प्लस 3 प्लस 5। वैसे ही 4 स्क्वायर दैट इज 16 और हमने बस क्या करा है, ऑड नंबर्स को एड अप कर दिया है एंड वी हैव गॉट द आंसर फ्रॉम हेयर। सो ऐसे ही हम टिल 30 कर लेंगे, 30 स्क्वायर। सो 30 स्क्वायर विल बी 900 दैट इज 841 प्लस 59। क्योंकि अब आप बार बार 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 लिखोगे तो आप थक जाओगे, राइट? सो आप डॉट डॉट करके लास्ट में 30 लिख देना, 30 स्क्वायर एंड राइट इट एज 841 प्लस 59। So students, the next question is, which of the following numbers has a digit 6 in the units place? So for a digit to be 6 in the units place,
the condition should be that the square of a number should be either 6 or 4 at the end. So we'll see these numbers जिसके भी end में 4 या 6 आएगा, that has a digit 6 in its units place if you square them up. So 38, no. 34 square, yes. 46 square, yes. 56 square, yes. 74 square, yes. 82 square, no. Because all these numbers, that is 34, 46, 56 and 74 has 6 and 4 in its units place. So if you square them up, you will have digit 6 in the units place. So the next question is, find more such patterns by observing the numbers and the squares from the table you filled earlier. So if you observe the table, it is saying 1 square is equals to 1. If a number has 3 or 9 in its units place, its square will always be 6. If a number has 2 or 8 in the units place, its square will always end with 4. And if a number has 5 in its units place, its square will always end with 5. Now, the next question is, that is question number 5. If a number contains 3 zeros at the end, how many zeros will its square have at the end? So they are saying if a number contains 3 zeros at the end. So let's take an example. This is a number 3000. It is containing 3 zeros at the end. And if you square it up, then how many zeros will its square end? So it has 3 zeros. So it will be 3000 into again 3000. So if you know 3 into 3 is 9 and there are 3 zeros at the end of first 3000 and 3 more zeros at the end of 3000. So it becomes 6 zeros. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So you will have 6 zeros at the end if a number contains 3 zeros at the end. So similarly, if you have 2 zeros at the end, then you'll have 4 zeros at the end of a number if you square it up. So heading towards the next question, it says, what do you notice about the number of zeros at the end of a number and the number of zeros at the end of its square? So what we have noticed? Yes, we have noticed that the number of zeros at the end of its square has doubled. Now they are saying, will this always happen? Yes, this always happens. You can take an example and see it. Can we say that squares can only have an even number of zeros at the end? We can say that squares can only have even number of zeros at the end. Question number 7 says, what can you say about the parity of a number and its square? अब आप सोच रहे होंगे कि ये parity क्या है? So, the parity of a number is referred to as even or odd. अगर हमारे पास कोई भी even number होता है, so उसकी parity हमेशा क्या होती है? 0. This means the remainder will always be 0 when divided by 2. और अगर कोई हमारे पास odd number होता है, तो उसकी पैरिटी हमेशा क्या होती है? 1, बिकॉज उसका रिमाइंडर हमेशा 1 रहता है व्हेन डिवाइडेड बाय 2, राइट? सो हम ये पैरिटी एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं. जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है 6 एंड 12. सो ये सेम पैरिटी के हैं बिकॉज दे बोथ आर इवन नंबर्स. और अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूं 7 एंड 12, सो ये डिफरेंट पैरिटीज है. क्यों? क्योंकि एक ऑड नंबर है और एक क्या है? इवन नंबर. सो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. सो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, व्हाट कैन यू से अबाउट द पैरिटी ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर? सो आप ही सोचो, अगर कोई नंबर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो उसकी पैरिटी क्या होगी? सो वील से दैट व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, it is called its square. So let's come back to the next question. It says, figure it out, page number 10 to 11. So question number 1 says, which of the following numbers are not a perfect squares? So do you remember which numbers are perfect square? Yes, the numbers like 0, 1, 3, 5, 9, जिनके लास्ट में ये आता है, these are the perfect squares. और जिनके लास्ट में ये नहीं आता है in the units place, they are not the perfect square. So let's see.
it is 2032. So its units place is 2. So this is not a perfect square. 2048. So this is also not a perfect square. 1027. So its units place is 7. So this is also not a perfect square. Now if you check out 1089, so it has a units place as 9. So you can say that this number is a perfect square. So question 2 says, which among the following, that is 64 square, 108 square, 292 square and 36 square has a last digit 4. So अब हमें इनमें देखना है 1 by 1 करके कि इसकी लास्ट डिजिट किसकी 4 आती है. सो आप कैसे करेंगे? आप तो मल्टीप्लाई कर देंगे 64 इंटू 64. नहीं, इसका भी एक शॉर्टकट है. द शॉर्टकट इज we'll see only the units place and we are going to multiply it twice. So 4 into 4 is 16. So इसकी last digit क्या होगी? 6. So it doesn't have a last digit 4. So I'll make it a cross. Let's check for the next one. It is 108 square. So last digit is 8. So 8 into 8 is 64. और 64 की last digit क्या है? 4. So जब आप multiply करोगे 108 into 108, whatever the answer will be, its last digit will be 4. Then the next one is 292 का whole square. Last digit is 2 into 2, that is 4. Again, we got a last digit as 4. And the last one is 36 square. So last digit is 6. So 6 into 6 is 36. And here the last digit is what? 6. So it doesn't have a last digit 4. So therefore you will say 108 and 292 are the numbers that has the last digit as 4. So our next question is question number 3. Given that 125 square is equals to 15625, what is the value of 126 का square? So some options are given to us. So हमें ये solve करना है कि अगर हम 126 का square करेंगे तो हमारा आंसर इन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में से कौन सा वाला आएगा, राइट? सो अब 126 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आइदर 126 इंटू 126, लेकिन हमारे आंसर्स तो 1 2 3 4 5 में से कुछ नहीं आएंगे, राइट? सो हमें इसको ब्रेक डाउन करना है. दैट विल बी 125 प्लस 1 का होल स्क्वायर. और ये क्या होता है? 125 प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस बिकम्स a प्लस b का होल स्क्वायर, करेक्ट? विच इज a स्क्वायर plus b square plus 2ab, where we have a as 125 and b as 1. चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं. सो a प्लस b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. सो हम इसे ओपन कर देते हैं. दिस विल बी 125 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. अब हम इसे खोलेंगे. 125 इंटू 125 विल बी 15625 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 125 विल बी इंटू 1 विल बी 250, करेक्ट? सो दिस विल बी 15625 प्लस 251. तो हमें फर्स्ट टर्म क्या चाहिए थी? 15625, करेक्ट? तो हमारी फर्स्ट टर्म यही आ गई एज एन आंसर एंड इट इज 251. सो हम देख लेंगे इसमें से कौन सा है. इफ यू चेक, इट इज ऑप्शन 4. सो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है. तो heading towards question number 4, it says find the length of a side of a square whose area is 441. So हमें क्वेश्चन में दे रखा है only the area which is 441. और I know that the area of square is what? Area of square is side square, correct? So I'll write side square here. और area of square की जगह में 441 is equals to side square लिख लूंगी. अब रूल क्या है? जब स्क्वायर on the other side जाता है, so it becomes the square root. So I can write square root of 441 is equals to side. और अब 441 का स्क्वायर रूट पे कैसे निकालूंगी? मैंने बोला था या तो याद कर लो या निकालना सीख लो. सो हम इसको एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं. सो दिस इज 441. सो 3 से 3 1s are 3 4 and 7. Again with 3 3 4s are 12, 3 9s are 27. Again with 7 7 7s are 49, 7 and 1.
सो इसके फैक्टर्स क्या क्या निकल गए, 3 × 3 × 7 × 7 इज इक्वल्स टू साइड. नाउ हमने इसका स्क्वायर रूट है, सो विल बी मेकिंग द पेयरिंग ऑफ 2 2. तो 2 2 की पेयरिंग करी, 1 विल बी 3 एंड 1 विल बी 7 इज इक्वल्स टू साइड. सो इसकी साइड क्या आ गई, 7 3 इज 21. सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 21. So question number 5 says find the smallest square number that is divisible by each of the following numbers, that is 4, 9 and 10. So to find the required smallest square number, we need to find the LCM first, which is divisible by 4, 9 and 10. So we'll find the LCM of 4, 9 and 10. 4, 9 and 10 by prime factorization method. So it will be 2, 9, 5. 2 ones are 9 and 5. Then with 3, 1, 3, 5. Then with 3, 1, 1 and 5. 5. So we have got the required factors. So the LCM, I can write it as LCM is 2 into 2 into 3 into 3 into 5. So if I multiply 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36 and 36 5s is 180. So I'll get the LCM as 180. So मेरा LCM आ गया है 180. और अगर आप 180 की फैक्टर्स देखोगे, that is 2 into 2, 3 into 3 and into 5, right? So for being a perfect square, सारे numbers की each pairing होनी चाहिए. लेकिन अगर आप देखेंगे तो 2 की पेयरिंग है, 3 की पेयरिंग है, लेकिन 5 की पेयरिंग नहीं है. तो I'll say 180 is not a perfect square. तो इसको perfect square बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? करेक्ट, इसको हमें किससे, एक 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और अगर मैं इसको एक 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, सो मुझे 180 को भी 1 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो इट विल बी 180 into 5, दैट इज 900. सो 900 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. सो द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विल बी 900. सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. इट सेज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 must be multiplied so that the product is a perfect square. Find the square root of the product. So हमारे पास ये जो है 9408, अभी ये perfect square नहीं है. तो पहले हमें क्या करना है, इन द फर्स्ट स्टेप हमें इसे क्या बनाना है, perfect square. तो इसको perfect square बनाने के लिए हम इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. तो कर देते हैं 2 4 8, सॉरी 2 4 8, 2 7 14, 0 2 4 8. फिर से मैं 2 से करूंगी, 2 3 5 2. अगर मैं देखूं तो मैं इसको फिर से 2 से करूंगी, 2 1 2 1 2 7 14, 2 6 12. फिर से अगर मैं इसको 2 से करूंगी, 2 5 10, 2 8 16 एंड 2 8 16. इसको मैं फिर से 2 से कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसको लेट्स से 3 से कर देती हूँ इस बार. सो इट विल बी 2 9 एंड 4 3, because I'll just see the last digit or I'll just add up all the digits. If all the digits sum is equals to the number which is divisible by 3, then I can divide the whole number with 3. So it will be 147, then again with 3. So it will be 49, 7 7 7 1. So मेरे इसके फैक्टर्स निकल गए. तो जो भी मेरे इसके फैक्टर्स निकल रहे हैं, अब मैं इनकी पेयरिंग करूंगी. जैसे इसका एक पेयर बन गया, इस 2 का एक पेयर बन गया, इस 3 का एक पेयर बन गया, इस 7 का एक पेयर बन गया. बट किसका पेयर नहीं बना, ओनली 1 3 इज लेफ्ट जिसका पेयर नहीं बना. तो मैं क्या करूंगी, जो मेरा 9408 है विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर राइट नाउ, तो मैं उसका क्या करूंगी, उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी जिसका पेयर नहीं बनना है. सो नाउ दिस विल बिकम अ perfect square, that is 2 8 2 2 4. Now in the next part they are saying find the square root of the product. अब आपको स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 2 8 2 2 4 का. अब मैंने आपको स्क्वायर रूट बताया है कैसे करना है. इन द सेम वे आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे. तो अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7. सो हम क्या करेंगे, अब हम इसकी पेयरिंग कर लेंगे.
ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये पेयर बना। सो जिस जिसके पेयर्स बन गए वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। सो व्हाट इज द नंबर? 2 into 2 into 3 into 7। और आप इसे सॉल्व करेंगे सो इट विल बी 252। सो आई से दैट स्क्वायर रूट ऑफ 28224 किसका स्क्वायर रूट है? 252 का। Question number 7, it says how many numbers lie between the squares of the following numbers? So the first one is 16 and 17 and the second one is 99 and 100. ये बहुत easy type के questions होते हैं। So हम कैसे करेंगे? Squares, they are asking us कितने squares है 16 square और 17 square के बीच में। So हम ले लेंगे n is equals to 16 and n plus 1 ही है, that is 17, right? So I'll write it as 17. So I'll say, therefore, the numbers between them are the numbers between 16 square and 17 square is 2n. That is 2 into 16. That is 16 to the 32. So there are 32 numbers that lie between square of 16 square and 17 square. Okay, let's go to the next one. Next one says 99 and 100. So हम क्या लेंगे? n is equals to 99 and n plus 1 is equals to 100. Correct? Sorry, equals to sign. Now, so the numbers between 99 and 100 will be how much? Again 2n. So it will be 2 into 99. So you will get it as 198. So there are 198 numbers between the squares of 99 square and 100 square. Question number 8, it says in the following pattern, fill in the missing numbers. So some numbers are missing और हमें ये पैटर्न ऑब्जर्व करना है और तब देखना है। तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बता रखा है कि गणित प्रकाश में हम ऑब्जर्वेशन भी करेंगे, क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं आएंगे। यू ऑल्सो हैव टू ऑब्जर्व इट एंड देन आंसर इट। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दैट। तो ये बोल रहे हैं 1 square plus 2 square plus 2 square is equals to 3 square. This is the first one. 2 square plus 3 square plus 6 square is equals to 7 square. अगर आप इन सबको एक बार ऑब्जर्व कर लो तो आप देखेंगे इन द पैटर्न क्या है। इन द लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट वन। इट इज सेज 1 square plus 2 square plus 2 square is equals to 3 square. तो आप देखेंगे 1 into 2 कितना होता है? 2 होता है, which is the third term. So first step will be we are going to multiply the first term and the second term in order to get the third term. Correct? और फिर हमने क्या करा है? जो भी हमारी थर्ड टर्म आई है उसमें हमने +1 ऐड कर दिया है। तो हमारा क्या बन गया? इक्वल्स टू वाला स्क्वायर का आंसर। वैसे ही आप सेकेंड वाला भी देख लो। 2 into 3 is 6, राइट? एंड 6 plus 1 is 7. सो हमारा आंसर आ गया 7 square. 4 3s is 12. 12 plus 1 is 13. सो 13. वैसे ही हम द नेक्स्ट वन, द फोर्थ वन करेंगे। 5 4s are 20, that is 20 square. एंड 20 में 1 प्लस कर देंगे, सो दिस बिकम्स 21 स्क्वायर। अब हो गया हमारा 9 10s are 90 और 90 में 1 प्लस कर देंगे, दिस बिकम्स 91। है ना ये इंटरेस्टिंग? बस हमें क्या करना है? अपनी ऑब्जर्वेशन पावर थोड़ी सी अच्छी करनी है। So students, our next question is, how many tiny squares are there in the following pictures? We have to write the prime factorization of the number of the tiny squares. So अब ये तो बहुत सारे numbers हैं। अब हमें इसको solve करने के लिए 1 1 करके count करेंगे तो I think हमारा पूरा time इसी में चले जाएगा, right? So हम ऐसा नहीं करेंगे। So इसका shortcut क्या होगा? हम पहले इसमें number of squares in rows देख लेंगे। रोज में कितनी स्क्वायर्स है? नंबर ऑफ रोज विच हैव स्क्वायर्स इन इट। सो अगर हम रो देखेंगे, रो मतलब जैसे दिस इज अ रो हेयर, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड कॉलम्स। सो अगर हम रो देखेंगे उसमें कितने स्क्वायर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो देर आर 9 रोज। वैसे ही हम कॉलम्स भी काउंट कर लेंगे। कॉलम्स काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So we have 9 rows and 9 columns in this.
अब हमें उन्होंने बोला है देर आर हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स। सो टाइनी स्क्वायर्स के लिए मैंने क्या करा है, मैंने ये थोड़ा सा एनलार्ज कर दिया है। ठीक है, तो हमारा जो एक स्क्वायर है उसमें हम गिनेंगे कि हाउ मेनी टाइल्स आर देयर। तो अगर आप इसे गिनेंगे 1 2 3 4 5, इसमें भी हम नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स करेंगे, तो मैं कर दूंगी टाइनी स्क्वायर्स। तो आप रोज देखोगे और इसके भी कॉलम्स देखोगे तो क्या होंगे, इसके 5 है, 5 रोज है और 5 ही इसके पास कॉलम्स हैं, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ द बिग वन कितने हो जाएंगे? सो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो बड़ी वाली पिक्चर में है, टोटल हो जाएगा इसका, दैट इज 9 into 9, तो दैट इज 81। और छोटे वाले में कितना हो जाएगा टोटल? दैट इज 5 into 5, दैट इज 25। इतना समझ आया? धीरे धीरे करेंगे। अब हमसे पूछा है कि पूरी फिगर में कितना होगा, सो हम कर देंगे द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितना हो जाएगा जो फर्स्ट फिगर का है इनटू द सेकंड फिगर? सो इट विल बी 81 into 25, and if you multiply this you'll get the answer as 2025। सो हो गया ना शॉर्टकट, नहीं तो आप तो पूरे दिन इनको गिनते ही रह जाते। सो लेट्स, अगर आप चाहते हैं कि सारे क्वेश्चंस बिना कंफ्यूजन के समझ आ जाए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो स्मार्ट मैथ्स बाय सुरभि, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट पार्ट 2 ताकि मुझे पता चले आप रेडी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो और स्मार्ट बनते रहो। टिल देन, बाय बाय।